students, in our last video regarding polynomial, we learned what is a polynomial and how do we represent a polynomial. Now we have to understand two very important theorems, factor theorem and remainder theorem. So before understanding that, I would like to tell you something. So let us proceed. So I am preparing my screen for that. Okay, I am taking two polynomials. First one I am taking that as 2x square minus 5x plus 4, and I am dividing this polynomial by x minus 5. All of you must understand how to divide. तो अगर आपको डिवीजन करनी होती है, हम क्या करते हैं, जो डिविडेंड होता है इसकी फर्स्ट टर्म लेते हैं. डिवीजन की आप फर्स्ट टर्म लेंगे और ये जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, इसको अगर आप अलग से डिवाइड करके देखता हूँ मैं इसको, 2x स्क्वायर अपॉन x, तो x स्क्वायर है पावर 2, x की पावर 1 है, 2 माइनस 1 1, सो आई एम लेफ्ट विथ 2x. 2x आप यहाँ पर लिखते हैं, 2x मल्टीप्लाइड बाय x इज 2x स्क्वायर, 2x multiplied by minus 5 is minus 10x. ओके, ऑल ऑफ यू मस्ट नो दैट कि यहाँ पर साइन हमेशा चेंज होते हैं और पहली वाली टर्म ऑलवेज कैंसल आउट हो जाएगी. ये प्लस 10x है, ये माइनस 5x है, तो आई एम लेफ्ट विथ 5x प्लस 4. अगेन इसकी डिग्री अगर आप देखते हो, अभी जो रिमाइंडर अभी तक बच रहा है तो उसकी डिग्री 1 है और डिवाइजर की डिग्री भी 1 है, तो अभी हमारी डिवीजन खत्म नहीं हुई. फिर हम 5x को x से डिवाइड करते हैं. आई एम लेफ्ट विथ 5, सो आई राइट 5 हियर. 5 मल्टीप्लाइड बाय x इज 5x and 5 multiplied by minus 5 minus 25. Okay, either here minus sign, here positive sign, it gets cancelled and I am left with 29. So you can see here quotient is this, I am writing here this is quotient and this is remainder, so that later on we can consider it is remainder and this is quotient. Okay, now I am taking another polynomial and we would do the same thing. I am taking another polynomial as x cube, x 2x cube rather, 2x cube minus x square minus 7x plus 2, and I am dividing it by x minus 2. Again case is same, the method is same. I divide this first term 2x cube divided by the first term of the divisor. ऑल ऑफ यू मस्ट नो दैट जब भी आप डिवीजन करते हैं दोनों की दोनों पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जो भी आपके पास में ये पॉलिनोमियल है, इसमें 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म, फिर उससे छोटी डिग्री वाली टर्म, उससे छोटी डिग्री वाली, उससे छोटी डिग्री वाली. सो हियर आई गेट 2x स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर आई राइट हियर, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x वी गेट 2x क्यूब, and 2x square multiplied by minus 2 I get 4x square. Sign gets changed, first term gets cancelled and I am left with 3x square minus 7x plus 2. Again its degree is 2, अभी भी इससे बड़ी है तो हम 3x square को x से डिवाइड करते हैं. I am left with 3x, so I write here 3x. So it is 3x multiplied by x, 3x square minus 6x, sign changed and this first term gets cancelled. I am left with minus x plus 2. Minus x divided by x, I am left with the x cancelled 1, so minus 1. I get minus x plus 2, sign change. So here you can see the remainder is 0. Now it is very important to understand one thing that I would like to tell. You know it already, it is nothing new for you.
all of you know that suppose if I take a number 18, if I divide 18 by say 4, so what do I get? 4 4 just 16 and remainder is 2. As you can see, 2 is not equal to 0, means remainder is not equal to 0. So we can say 4 is not a factor of 18. Now I take another case, 18 divided by say 6. So we know 6 3s are 18 and remainder is 0. So as remainder is 0, so we say 6 is a factor of 18. All of us know it from the very beginning. I think सभी को भी ये मालूम होगा अच्छे से कि किस तरह से हम बताते हैं कि अगर कोई नंबर किसी को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो हम कहते हैं वो उसका फैक्टर है. इन द सेम वे आप यहाँ पर देखिएगा कि ये जो आपके पास में पॉलिनोमियल थी 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, इसको मैंने x माइनस 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0. इट मीन्स आई कैन से x माइनस 2 is a factor of given polynomial. But in this case remainder is not 0, therefore it is not a factor. Now here I would like to tell you one thing very clearly, that all of you know how to find value of a polynomial at a given point. So here if I write f of x say f of x is equal to 2x square minus 5x plus 4. So if I write f of, say I write 1 generally, in place of what I have written 1, in place of x I have written 1. देखो मैंने x की जगह पर 1 लिखा है, तो इसलिए जो भी पॉलिनोमियल है वहां जहां जहां x आपको दिखाई देता है उसको 1 से रिप्लेस कर दीजिए, नथिंग मोर देन दैट. सो आई गेट 2, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 5 1 जा 5 प्लस 4. सो आई गेट 2 minus 5 plus 4. It is 2 plus 4, 6 minus 5, that is 1. One more thing that I am doing here, it was x minus 5. तो अगर x माइनस 5 को आप 0 रखोगे तो you get x इज इक्वल टू 5. 5 को इधर ट्रांसपोज करते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा. अब मैं f ऑफ 5 निकाल रहा हूँ. प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल है. मुझे यहाँ से रिजल्ट फाइंड आउट करना है, जो हम कंफ्यूज होते हैं उसके लिए. 2 अगेन जो x की जगह हमने 5 लिखा है, तो अगेन आपको कुछ नहीं करना, केवल x की जगह 5 सब्स्टिट्यूट करना है. 5 into 5 plus 4. Now see what happens. 5 square is 25 2 ja 50 minus 25 plus 4. So here I get 50 plus 4 54 minus 25. So I get 29. And please notice here, whatsoever we are left with here, I am left with 29 and 29 was also here. तो आपने देखा कि अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है और अगर मुझे इस पॉलिनोमियल को 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को x माइनस 5 से डिवाइड करना है, तो मुझे जस्ट उसकी वैल्यू निकालनी है उस पर. इट मीन्स इट इज रिमाइंडर. सो व्हाट डू वी हैव टू कंसिडर हियर. अब आपको यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जैसे यहाँ पर अगर मैंने x माइनस 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है. इन द सेम वे यहाँ पर अगर मैंने x माइनस 5 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, रिमाइंडर ये आया, तो इसका मतलब कि अगर मैं f ऑफ 5 निकालूंगा तो वो रिमाइंडर आ जाएगा जब उसको हम डिवाइड करते हैं. तो अभी हमें रिमाइंडर निकालने के लिए कभी भी इतनी लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है. जस्ट हम उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पॉइंट पर निकाल देते हैं. जैसे मैंने आपको ये बताया, x माइनस 5 को आप 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू 5 आ जाएगी. आई हैव रिटन बोथ ऑफ द रिजल्ट्स हियर कलेक्टिवली. अगर आप यहां पर देखते हैं, ये जो हमारे पास फर्स्ट
एक्सप्रेशन थी फर्स्ट पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, इसको जी ऑफ एक्स से डिवाइड किया, ये इट इज अ बाइनोमियल एज यू नो। तो मैंने अगर इस बाइनोमियल से डिवाइड किया, यू कैन सी रिमाइंडर इज 25। और आपको ये भी बताया कि अगर एफ ऑफ 5 निकालते हैं तो वो आता है 29, यहाँ पर सेम। और यहाँ पर भी आपके पास में पॉलिनोमियल ये थी और इसको आपने x-2 से डिवाइड किया, और अगर आप f of 2 फाइंड आउट करेंगे देन यू विल गेट 0। अब हियर इज द रिजल्ट जो आपको रिमाइंडर और फैक्टर थियरम करनी है। यू मस्ट नो दैट जो फैक्टर थियरम है दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थियरम। आई एम रिपीटिंग, फैक्टर थियरम, factor theorem is a special case of remainder theorem. Now we are ready to understand what is factor theorem and what is remainder theorem. Now we are ready to state as well as understand the remainder theorem and factor theorem. So I am clearing the screen here to write the two theorems, very important one. Okay, this is, now first I am writing factor theorem. So factor theorem, you have clearly seen if आपके पास f of a is equal to 0 आप लिखते हो, a means any real number, it is any real number। तो अगर f of a 0 आता है, जैसे इस केस में f of 2 0 आ रहा था, तो हमने क्या किया कि x को 2 पुट किया ना, आपने x को 2 पुट किया और 2 को इधर लेकर के आएंगे तो x-2 आएगा, इट मीन्स x-2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो दिस इज फैक्टर थ्योरम। तो अगर f of a 0 के इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a, और a को आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के जाएंगे तो x-a, तो इट मीन्स x-a इज अ factor of f of x। और इसका अगर हम कन्वर्स करते हैं, इट मीन्स कि if x minus a is a factor of f of x, then जैसा अभी आपको बताया कि अगर हम f of a निकालेंगे तो इसका मतलब वैल्यू निकालते हैं तो वो रिमाइंडर आता है, और आपको पता है जब फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। सो दिस इज फैक्टर थ्योरम। नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, there is not much difference, we can understand it by just simple statement। so now remainder theorem, what does it state? It states that if we divide any polynomial f of x by any binomial of this form, you can understand x minus a, then the remainder is f of a। as we have seen here कि अगर मैंने 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को x माइनस 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 29 आया, जो आपने देखा कि लॉन्ग डिवीजन से आता है। और बिल्कुल ऐसे ही अगर मैंने f of 5 निकाल लिया, मतलब कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 5, अगेन आई गेट द सेम वैल्यू। इट मीन्स दिस इज व्हाट द रिमाइंडर थ्योरम states। So hope you have understood
what is factor theorem and what is remainder theorem. Please try to solve a few sums based on it so that you can understand the concept more deeply. Let us see you in our next videos. Thank you. Thanks a lot.